Hi all my viewers, welcome back. So today we will solve exercise 1 of the work power energy module. So in this exercise I have taken some of the questions which students find difficult to solve. So let's start from the question number 10. It is when momentum of a body is increased by 50%, what is the percentage increment in kinetic energy? The momentum, let's suppose initial is P and momentum is final is equal to P plus increases by 50% means 0.5 P increase हो गया. That is equal to 1.5 P. This is the final momentum. And we know that the kinetic energy is equal to P square by 2M. So we have to find percentage increment, that is equal to K final minus K initial. This will give you increase upon percentage initial into 100. This is the formula for percentage increment in any quantity. So we will put these values to 1.5 P upon 2M square minus P square by 2M upon P square by 2M initial into 100. So यहाँ से क्या करते हैं, P square by 2M कॉमन निकाल लेते हैं. तो दिस विल गिव 1.5 का स्क्वायर, दैट इज 2.25 minus 1 upon P square by 2M into 100. तो यहाँ से ये और ये हो गए कैंसिल. दिस विल गिव यू 1.25 into 100 and that is equal to 125%. That means कि अगर आप 50 मोमेंटम को 50% बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी 125% बढ़ जाएगी. And this is the formula for percentage increase or decrease in any quantity. So let's move to question number 11. Electron and proton are detected in cosmic ray experiment. The first with kinetic energy 10 kilo electron volt and second with इतना. मतलब kinetic energy given है electron की, that is equal to 10 kilo electron volt and kinetic energy of proton is equal to 100 kilo electron volt. Which is faster, electron और proton? और हमें रेशियो निकालना कि कितनी वेलोसिटी का रेशियो होगा. So पुट करते हैं. तो के ई अपॉन के पी that is equal to 10 keV तो cancel upon 100 equal to 1 upon 10. And we know that the kinetic energy will be equal to half mass of electron, velocity of electron का square upon half mass of proton upon velocity of proton का square. This is a very easy question. तो देखते हैं इसको. तो VE by VP का square is equal to MP by 10 into ME. ठीक. तो इसे पुट कर दें अगर हम, तो MP is equal to 1.67 10 की पावर minus 27 into 10 and M is 9.1 into 10 की power minus 31. Both masses are given here. So we will get it कि VE upon VP is equal to under root of 1.67 upon 9.1 into 10 की power 3. So if you solve this, you will get, and this is equal to 1670 upon 9.1. So you can solve it and calculate it. You will get approximately 13.5 V by Vp. So you can easily see that the velocity of electron is greater than velocity of proton. Rest is calculation. You can solve it yourself. So this is now. Let's move to next question. Question number 12. Two blocks are connected by a string as shown in figure. They are released from rest if the coefficient of friction between m1 and this is mu. Find the common speed of the blocks at the instant when they both move distance l. तो इसने l डिस्टेंस मूव किया नीचे, नीचे आएगा और ये l डिस्टेंस यहाँ से आगे जाएगा. ठीक है, तो इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ. दिस इज m2. इस पे लग गया इसका वेट, दैट इज m2g. इस पे इसका वेट m1g. ऊपर नॉर्मल, आगे टेंशन, पीछे फ्रिक्शन और यहाँ पे भी टेंशन. सो लिखते हैं. तो दिस जो हमारे पास होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये कहता है कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितनी फोर्सेस दी हैं, फ्रिक्शन प्लस m1g
प्लस टेंशन, नेट टेंशन का लिखा है मैंने, नेट दोनों का मिला के, प्लस नॉर्मल एंड प्लस m2g is equal to change in kinetic energy. This is work energy theorem. ठीक बात है. And we can check that कि work done by m1g is zero because m1g is downward and the block is moving forward. ये तो आगे जा रहा है, ये नीचे आ रहा है. ठीक है. Work done by normal is also zero. Why? Because force is acting upward and the block is moving rightward, and we know that work done is equal to fs into cos theta. एंगल फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल 90, एंगल 90 होते ही cos जीरो तो वर्क डन भी जीरो, तो ये भी जीरो हो गया. ठीक है जी. अब बात करते हैं टेंशन की. तो अगर मैं टेंशन का वर्क डन इस पे निकालूं पहले ब्लॉक पे, वन वाले पे, तो आएगा टी इंटू एल इंटू कॉस जीरो. और इस पे निकालू क्योंकि ये दोनों आगे जा रहे हैं, ये भी आगे है, ये भी आगे. यहाँ देखते हैं टेंशन का वर्क डन, तो टी इंटू एल इंटू कॉस पाई. वाई? बिकॉज एल इज नीचे एंड टेंशन इज ऊपर, तो दिस इज माइनस टी एल. तो नेट निकालोगे, ये टी एल, ये माइनस टी एल, नेट कितना? नेट इज जीरो. तो वर्क बाय टेंशन इज ऑल्सो जीरो. अब बात करते हैं फ्रिक्शन की. फ्रिक्शन लग कितना रहा होगा? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन एंड म्यू एन इक्वल टू एम वन जी. तो फ्रिक्शन का वर्क आएगा, फोर्स हमारे पास म्यू एम वन जी इंटू एल. एंगल कितना? एंगल इज कॉस पाई क्योंकि जा रहा है आगे और फोर्स से पीछे, प्लस वर्क डन बाय एम टू जी जो कितना है? एम टू जी इंटू एल, क्योंकि इसमें एंगल जीरो हो जाएगा, नीचे जा रहा है और ग्रेविटी भी नीचे है इस पे, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी स्क्वायर. इनिशियल इज जीरो, दिस इज फाइनल. सो यू कैन गेट की वेलोसिटी जो आएगी वो निकल के आ जाएगी हमारे पास, टू ऊपर ले लेते हैं, टू एम टू माइनस म्यू एम वन इंटू जी एल कॉमन अपॉन नीचे यहाँ से एम वन प्लस. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इसको हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के. ये हमने देख लिया. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो मैं इस चैप्टर में एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन ही इजी हैं, बस ये है कि बस लगाना आना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम. ए बकेट इज टाइड टू ए स्ट्रिंग. एक बकेट है कुछ, तो पहले एक बकेट बना लेते हैं. This is a bucket and this is tied to a string और उसको नीचे ले आया जा रहा है g by फोर्स. तो इसका कुछ वेट लगेगा नीचे हमारे पास mg. तो हमें निकालना है कि वर्क डन बाय स्ट्रिंग विल बी कितना होगा जब इसने d डिस्टेंस तक नीचे आया है. ठीक है, नीचे की तरफ. तो नीचे आ रहा है, इक्वेशन लिखते हैं पहले तो, mg माइनस टी इज इक्वल टू m a है g by 4, t is equal to 3mg by 4. This is the tension, and we have to calculate work done by tension. So we know that t into distance is d into angle is pi, because why? Tension is acting upward and displacement is downward. This is so minus t into d, and t is equal to minus 3mg d by 4. This is work done by tension. बहुत easy question है ये भी. And next is the last question of this lecture and this exercise also. A horizontal massive platform is moving with constant velocity. एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत मासिव है, बहुत मासिव मतलब उसका मास बहुत 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 ज्यादा है, और इसकी वेलोसिटी कुछ आगे की तरफ मान लेते हैं v नॉट, जो कि कांस्टेंट है. तो मतलब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है जो उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट कर रहा है. एट t इक्वल टू 0 स्मॉल ब्लॉक इज प्लेस जेंटली. इसको एक छोटे से ब्लॉक को रखा गया उठा के इस पे, जेंटली मतलब बहुत धीरे से, कोई हमने डिस्टर्ब नहीं किया सिस्टम को. और इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दोनों ब्लॉक के बीच में, इज म्यू. ठीक है. वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन द ग्राउंड फ्रेम कितना होगा? तो वर्क डन बाय हमें फ्रिक्शन फोर्स का निकालना है. ठीक है जी. तो पहले इस ब्लॉक को देखते हैं, भाई इस ब्लॉक के साथ क्या हो रहा होगा जब रखेंगे इसको. तो ये ब्लॉक के पास कोई स्पीड नहीं थी इनिशियली, इनिशियली स्पीड वाज जीरो. ठीक है. जैसे रखेंगे तो ये जो नीचे वाला प्लैंक है, ये प्लैंक जा रहा है आगे की तरफ, तो ये प्लैंक पे फ्रिक्शन लगाएगा ये ब्लॉक कुछ पीछे की तरफ. लेकिन ये फ्रिक्शन कुछ कर नहीं पाएगी इसका, क्योंकि हमने वेलोसिटी कांस्टेंट कर रखी है कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा के. और जैसे इस पे फ्रिक्शन पीछे होगा, इस पे आगे लग जाएगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ. तो इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी,
और एक टाइम पे आके दोनों की स्पीड जो है यहाँ पे हो जाएगी कांस्टेंट। जैसे ही दोनों की स्पीड किसी इंस्टेंट पे प्लैंक की, क्योंकि इसकी बढ़ रही है स्पीड, इसकी स्पीड तो वी नॉट ही है, ठीक है, एक टाइम पे आके इसकी स्पीड भी बढ़ते बढ़ते वी नॉट हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन इस पे हमेशा आगे ही लगेगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा, बोला भी है सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, और ये प्लैंक बहुत लंबा है, एक टाइम पे इसकी स्पीड जाके वी नॉट हो जाएगी, उस टाइम पे इनके बीच में रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा। तो हमको उस टाइम पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है टोटल इन द ग्राउंड फ्रेम। तो ठीक है, वर्क डन बाय देखते हैं ब्लॉक पे क्या लग रहा है। ब्लॉक पे लग रहा है एक तो फ्रिक्शन आगे की तरफ ये रहा, और लग रहा है एक ब्लॉक पे नॉर्मल, और लग रहा है ब्लॉक पे एक वेट। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। Work done by gravity is zero, work done by normal is zero, because normal is perpendicular, mg is perpendicular and the block is moving forward. Work done by friction is what? ये तो निकालना है हमको, is equal to change in kinetic energy final is equal to half m v naught square, जब इसकी स्पीड v naught हो जाएगी बहुत टाइम बाद, initially was zero. So this is the answer of this question, half m v naught square plus lost. So this is all about this exercise. So in next lecture we will solve the exercise 2 and the CVP assignment वगैरह. So that's it. Thanks for watching.